So the session is live now. Assalamu alaikum. A very good afternoon to everyone. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallallahu ala Muhammad. I start in the name of Allah, the most gracious, the most merciful, and peace be upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is Tirmizi Ashrafi from Association of Muslim Professionals, and I welcome you all in this wonderful and informative session of employability training program on interview skills and techniques. I would now do a small presentation on AMP India Foundation. AMP India Foundation. AMP India Foundation is a not-for-profit organization registered under Section 8 of Companies Act 2013, Government of India, for providing voluntary social services to meet the needs of underprivileged individuals, that is, upliftment of the underserved and needy through education and vocational training, employment support, medical relief, economic empowerment, student mentorship and guidance. Employment Assistance Cell. We all are witnessing AIF's success as one of the most admirable national level NGO striving for three E's: education, employment, and empowerment. Keeping in mind AIF's core objective of supporting the underprivileged, promoting education, and creating economic empowerment, AIF had launched a special project with the name of AIF Employment Assistance Cell. During its initial stages of formation, today it is one of the core projects of AIF. Our major EAC activities include, but are not limited to, conducting job fairs, job drives, employability training programs in colleges, skill training company tie-ups, candidate mobilization, skill development courses. Job fairs. Job fair is one of the flagship projects of AIF. We have successfully organized 43 job fairs till date. Every job fair has a participation of minimum 50 companies and 2000 plus candidates. AIF has organized job fairs in the past in collaboration with Thane Police, Aurangabad Police, West Bengal Minority Finance Development Corporation, Andhra Pradesh State Minorities Finance Corporation, and other reputed NGOs. These government organizations and NGOs collaborate with AIF as local partners and take care of the local ground promotions in the job fair arrangements. AIF invites corporates like TCS, Asian Paints, Reliance Group, Cafe Coffee Day, McDonald's, Team Lease, Tech Mahindra, and other reputed corporates in the job fairs. Job drives. Job drives are similar to job fairs but are organized on a much smaller scale compared to job fairs. In a job drive, we typically invite only up to 2 to 3 corporates. Employability training programs. AIF's Employability Training Program, or ETP, has been developed to assist job seekers find the right job at the right place at the right time. And to become the right fit in a present day modern organization, our ETP trainers are seasoned professionals who have in depth understanding of employability training and committed to investing their valuable time, resources, and knowledge in grooming the candidates. We team up with colleges in different cities and conduct ETPs there on a regular basis, usually once every month. Skill training company tie-ups and candidate mobilization. AIF has partnered with reputed skill training companies like Tata Trust, Whirlpool, Tech Mahindra Foundation, etc. We have also arranged skill training melas in Mumbai by inviting around 20 skill training companies. Our achievements: 43 plus job fairs, 9 online job fairs, 275 plus job drives, 6 online job drives, 220 plus employability training programs, 24 online employability training programs. 100 plus mock interviews in colleges, 25,000 plus candidates placed in jobs. Organized 6 career fests and benefited 150,000 plus students. New initiative by AMP India Foundation, empowerjobs.com. Empowerjobs.com was launched on 6th December 2020. It's a unique job portal with comprehensive offerings introduced by AMP India Foundation for job seekers, especially those hit by COVID pandemic. Thank you very much. I would now
welcome our speaker. I would now introduce the speaker for today, Mr. Irfan Ismail Mullah. Mr. Irfan Ismail Mullah is a Irfan Ismail Mullah is a BE mechanical from VGTI Mumbai, graduated in 1987, stood 77 in the order of merit at HSC in Maharashtra in 1983. Maintenance and projects experience of 33 and a half years in India and 12 countries in Africa, UAE, Malaysia, Turkmenistan, Saudi Arabia, Yemen, and Qatar. Currently, he is working with Saga Global Consultants Mumbai on deputation to Liberia, West Africa for refinery technicians and supervisors training as mechanical specialist. I would now welcome our speaker for today, Mr. Irfan Ismail Mullah, to please carry on the session from here. Over to you, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. And good afternoon to you, Indian people. Right now I'm calling from, I'm taking this webinar from Liberia, West Africa, where my time is 9:30 in the morning. So I welcome you all for this session. And I hope there are young boys, and I see some old, my colleagues also. Kausar bhai, assalamu alaikum. So let us have I will share the screen now for, this is a workshop on interview skills and techniques. Interview is the first step of any prospective employment or job. And if we win the interview, we win the job. First thing first, the opening sentence or the शुरुआत इंटरव्यू की जो होती है वो अपने कवर लेटर से होती है, रिज्यूमे से होती है. So what employers consider resume and cover letter, that they should be flawless in format, grammar and spelling. अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, this is a resume. I'm sharing you a resume, and this resume, the font, the size of the font, and where you have highlighted everything, formatting, justification of all your content, everything should be good, and it should look good to a person who is reviewing your CV and resume. What employers see in your resume is that your resume, your biodata, your cover letter, they should be flawless in terms of format, grammar, and spelling. And resumes should also be tailored to the specific job for which you have applied, and it should emphasize relevant work experience and academic qualifications. Among those hundreds of applicants for a job, if your resume and cover letter are strong enough, it will prompt a potential employer to invite you for an interview. So this is the game, you write your resume. Resume is like a biodata. You are trying to sell you with the skills, with the qualification, and with the required experience for the job. Now, what are the types of interviews? You see, there are one-to-one, there are screening, there are interviews on the phone nowadays because of the COVID pandemic, and previously also due to the distance barriers.
Then there is a panel interview. You are in a room as an interviewee, and interviewers will be a group of people, 2, 3, 4. Okay. Then sometimes in the interview, they give you a task or some technical written examination. And it is also by a video, Skype or Zoom. Now, tip here is when you are invited for an interview, be sure to ask what type of interview you will have with the potential employer, whether it will be one-to-one or it will be on phone or it will be on Skype or Zoom, okay? And if it is online, then you should ask for the link, okay, so that you can attend. Now, pre-interview preparations. What are the pre-interview preparations? When you get an interview call, you should research about the organization, the company for which you are appearing. उसके बारे में थोड़ा मालूमात हासिल करो. और आजकल देखो इंटरनेट का जमाना है. गूगल में थोड़ा टाइप कर दो, hundreds of thousands of pages ओपन हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एबीसी कंपनी है, तो एबीसी कंपनी, उनके कॉर्पोरेट वैल्यूज क्या है, उनके प्रोडक्ट्स क्या है, कहाँ उनके प्लांट्स हैं या ऑफिसेज हैं, क्या बिजनेस है उनका, लेटेस्ट न्यूज क्या है, उसके एमडी सीएमडी कौन है, क्या है. फिर जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है, अगर उसके बारे में कुछ पता है तो उसका बैकग्राउंड पता कर लो, सोशल मीडिया पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, लिंक्डइन पे देख लो, पता चलेगा. ठीक है. फिर अगर आपके नेटवर्क में कुछ लोग हैं तो पता करो कि भाई रिक्रूटर से पता करो जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया है कंपनी से, उससे भी हम पता कर सकते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई हम 2-3 क्वेश्चंस प्लान करें. जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वही हमको इंटरव्यू करे, बल्कि कंपनी के बारे में हम भी उनसे पूछें. वी शुड आल्सो आस्क दैट what are the company's future plans for expansion or introduction of new technology or new projects. तो हम भी जो कंपनी के बारे में कुछ सवाल करें उनसे, तो this shows that you are keenly interested in this company. फिर इंटरव्यू के लिए जब हम जाएंगे तो वी शुड ड्रेस फॉर द ओकेजन. ड्रेस का जो फॉर्मल ड्रेस कोड है, हम उस ड्रेस डिसेंटली ड्रेस पहन के जाएं हम ना. अभी जैसे हम जुमा की नमाज के लिए जाते हैं मर्द हजरात हमारे, तो कैसे हम कुर्ते पैजामे में जाते हैं, जुमा का हमारा ड्रेस है वो, समझे कि नहीं. अब कुर्ता पैजामा पहन के अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाएगा तो सामने वाला इंटरव्यू वाला क्या सोचेगा कि भाई ये इंटरव्यू देने आया है या नमाज पढ़ने आया है. और मैं जानता हूँ इसी एक केस कि भाई इंटरव्यू देने के लिए गए एक साहब और कुर्ते पैजामे में और साफा वाफा बांध के गए थे, तो उस बंदे ने रिजेक्ट कर दिया. तो हम जो है हमारे ड्रेस पे भी ध्यान दें. और सबसे बढ़िया जो बात है ये कि हम वक्त के पहुंचने की कोशिश करें, बल्कि अगर हमारे आसपास ऑफिस है या इंटरव्यू का लोकेशन है तो हम एक दिन पहले जाके आए उस वक्त पे. हम देखें कि भाई कितना वक्त लगता है और हम 15 से 20 मिनट पहले जो है वहां पे ऑफिस में पहुंचे, ताकि वहां जाके हम देखें, थोड़ा चाय पानी ठंडा वंडा पी के हमारा भी जो है पसीना वसीना सूख जाए और हम शांति से बैठे वहां का माहौल देखें. फिर इंटरव्यू के वक्त जब हम जाएं तो आजकल सबों के पास जो है वो एक मोबाइल शेयर होती है, और जो मैसेज आने पे कुछ घंटी बजाती है, एसएमएस आने पे कुछ घंटी बजाती है, कॉल आता है, व्हाट्सएप मैसेज आता है, अपडेट आता है. तो ये सारी चीजें जो है आप इसको डिस्ट्रैक्ट कर दें या उसको जो है फ्लाइट मोड पे डाल दें. ठीक है. और इंटरव्यू में जब हम शरीक जैसे हम इंटर होते हैं और अगर हैंडशेक है तो हम अच्छे से
अच्छे से हैंडशेक करे, पाम से पाम मिले, समझे कि नहीं? ये हैंडशेक जो है इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन फॉर द इंटरव्यूअर, और ये इट गिव्स अ साइन कि भाई यस, गर्मजोशी है, इस्तकबाल है, और दिस इज समथिंग रियली रियली, यानी हम इस बच्चे से जो है कुछ उम्मीद कर सकते हैं, बच्चा लगता है कमिटेड है। ओके, सो these are the pre-interview preparations. Now, as we discussed in pre-interview suggestions about dress for success, तो थोड़ा उसके बारे में हम टच करेंगे कि भाई प्रोफेशनल ड्रेस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं फॉर मेन एंड वीमेन, फॉर मेल एंड फीमेल्स। तो अभी कंजर्वेटिव डार्क सूट्स और फॉर्मल्स फॉर मेन है, ठीक है, ये साड़ी और शलवार कमीज फॉर विमेन है। अगर कोई औरत बुर्का पहनती है, पर्दा करती है, तो बिल्कुल पर्दे में जा सकती है वो, समझे कि नहीं? इंडिया में और हमारे पड़ोस के देशों में, मिडिल ईस्ट में अभी तक वो कल्चर नहीं आया है जो यूरोप और अमेरिका में है। इवन अमेरिका में भी कई लोग जो है, कई औरतें, कई लड़कियां जो है, इवन न्यूज रीडर्स आजकल हिजाब में आने लगी हैं, ठीक है। अगर हम आपके जिस्म पे जो है पियर्सिंग या टैटूज वगैरह हैं, तो आप उसको जो है विजिबल ना रखें। फिर शूज जो है वो हमारे पॉलिश्ड हों और क्लोज शूज हों, ओपन शूज ना हो, और ज्वेलरी जो है वो कम से कम हो। नहीं तो मालूम पड़ा कि भाई हाथ में दोनों तरफ जो है वो 1-1 किलो के हम ब्रेसलेट पहन के जा रहे हैं मर्द हजरात, और औरतें जो है वो बड़े बड़ी ज्वेलरी पहन के जा रही, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर हेयर स्टाइल भी जो है वो आजकल फैशनेबल हेयर स्टाइल जो होते हैं ना, उस टाइप का हेयर स्टाइल नहीं हो, सोबर हेयर स्टाइल हो। और कुछ लोगों को जो परफ्यूम और इतर लगाने की आदत होती है, तो वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला ना हो। अगर आपको लगाना है, आप रह नहीं सकते उसके बिना, तो लगाइए, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, और क्वांटिटी थोड़ी कम इस्तेमाल करके जाए। या अगर आप हमेशा जैसे, आप सब पता होगा कि जैसे मजमुआ अतर है, मजमुआ हर किसी को पसंद नहीं आता, अब मजमुआ लगाते हैं रोज, उसकी बजाय कोई सॉफ्ट लाइट अतर लगा के जाए, प्लस मिनिमम मेकअप हो। फिर कंजर्वेटिव है में नेकलाइन हो फॉर लेडीज, देन कपड़े जो हमारे इस्त्री किए हुए हों, और डार्क सॉक्स हों फॉर मेन के लिए, और विमेन के लिए पैंटीहोज हों। तो ये एक ड्रेस फॉर सक्सेस कोड है। देन हाउ टू शेक हैंड्स, ये पूरा आपको एक दिखाया गया है कि भाई हम शेक हैंड कैसा करें। दोनों दोनों देखिए हाथ कैसे पाम से पाम मिले हुए हैं। एंड हाउ डू वी हैंड शेक? We smile, okay? As a candidate, we smile and make eye contact as you shake hands. Then we extend your hand, your palm should touch the palm of the interviewer, and use a firm handshake. Adjust your grip to the other person's hand and hold the handshake for 2 to 3 seconds, making a slight up and down pumping motion. यानी हाथ जैसे हमारे मोदी जी हाथ पकड़ के रखते हैं ना, उतना लंबा नहीं पकड़ना है, बल्कि एक 2 से 3 सेकंड पकड़ के थोड़ा ऊपर नीचे एक बार शेक करके हाथ छोड़ देना है। और इसमें एक टिप ये है कि भाई अगर आप नर्वस हैं या आपके हाथों में पसीना आ रहा है, तो एक टिश्यू पेपर या हैंकरचीफ दस्ती अपने पॉकेट में रखिए, और जाने से पहले जो है उसको थोड़ा हाथ वाथ ड्राई कर लीजिए, वाइप कर लीजिए। बिकॉज अगर आपका हाथ गीला है तो इंटरव्यूअर को अच्छा नहीं लगेगा कि गीले हाथ से आप शेक करें, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत बड़े काम करती हैं। हालांकि ये देखिए एएमपी ने इतना माइन्यूटली डिजाइन किया है ये प्रोग्राम कि हमारे जो भी पास आउट होने वाली यंग जनरेशन है, वो जनरेशन जो है कहीं फेल ना हो। अगर हमको जॉब करना है
तो इंटरव्यू देना लाजमी है। अगर हमें नौकरी करना है तो इंटरव्यू देना लाजमी है, चाहे वो ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, डिप्लोमा के बाद, बीए बीकॉम के बाद पहला इंटरव्यू हो, या 10 साल बाद आप जॉब चेंज कर रहे हैं तो इंटरव्यू हो। इंटरव्यू तो बहरहाल देना है। तो उसमें पहनावा कैसा हो, हैंडशेक कैसा हो, बॉडी लैंग्वेज कैसी हो। अब ये स्क्रीन में ये स्लाइड में हम देखेंगे कि भाई बॉडी लैंग्वेज कैसी है हमारी। हाँ, क्या बोलते हैं इंटरव्यूअर्स, देखिए कि 67% of hiring managers cite lack of eye contact as the biggest mistake candidates make. हम जब इंटरव्यूअर से मिलते हैं तो हमारा आंखों से आंखों का जो कांटेक्ट है वो अगर नहीं हुआ, हम उससे मुसाफा कर रहे हैं और देख रहे हैं दीवार की तरफ, बल्ब की तरफ, पंखे की तरफ, एसी की तरफ, तो ये नहीं चलेगा। दिस शोज कि भाई आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप में भरोसे की और काबिलियत की कमी है। तो जब भी हम जाएं तो आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर 26% of applicants in an interview get rejected because they forget too much. 26% लोग हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, इधर खुजा रहे हैं, उधर खुजा रहे हैं, नाक में उंगली डाल रहे हैं, क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये सारी एक्टिंग देख के जो है, जो इंटरव्यूअर है वो रिजेक्ट कर देता है कैंडिडेट को। और 21% on the body language of interviewer will reject candidate who give a weak handshake. देखिए 21% चांसेस जो हैं 100 में से, अगर आपने अच्छी तरह से हाथ नहीं मिलाया तो पहला इंप्रेशन आपका वो है फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन में अगर गर्म जोशी रही और अच्छे से मिले तो आपकी आगे की सारी मंजिलें आसान हो जाती हैं। And 39% of interviewers are put off if a candidate fails to smile. You know, अगर आप खुन्नस में है, आंखें घुमा रहे हैं, चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं है, तो इंटरव्यूअर क्या समझेगा? बोला कोई सुपारी लेके आया है क्या? बोले हाँ, खाने आया है क्या? तो हम जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं, हाथ मिलाएं, थोड़ा स्माइल करें। स्माइल, मुस्कुराना जो है, smile is a gentle curve which puts many things straight. तो ये मुस्कुराना जो है, ये जो है सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं है, बल्कि अपने घरों में भी, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, हाँ, मुंह चिढ़ा के रखना, मुस्कुराना जो है, दिस इज अ वेरी गुड साइन। इट हेल्प्स अस। और मुस्कुराना जो है, आप अल्लाह के रसूल भी जो है हमेशा, यानी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी, कोई टेंशन दिखता नहीं था, समझे कि नहीं? तो मुस्कुराना जो है, दिस इज अ वेरी गुड मैनर एंड एटिकेट। नाउ आवर नेक्स्ट slide is do's and do nots. Now regarding do's, let us finish do's first. In do's, now अभी जैसे हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अब इंटरव्यू के बाद हमको गांव जाना है, अब 2-4 बैग लेके हम निकले हैं, इंटरव्यू देंगे फिर वहां से गांव जाएंगे, ऐसा नहीं करना। इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो हमेशा कोई भी एक ही आइटम पकड़ना, कोई एक, या तो एक ब्रीफ केस हो, या तो एक हैंड बैग हो, समथिंग लाइक दैट। ज्यादा माल मता लेके नहीं जाना इंटरव्यू के लिए। फिर शूज काउंट। Many employers say the last thing they remember is the back of the candidate shoe. यानी हमारे कैंडिडेट जब इंटरव्यू दे के जाता है तो जाते वक्त भी इंटरव्यूअर उसको देखता है, तो उसका जो है ड्रेसिंग और उसके जो जूते का जो पिछला हिस्सा है वो कैसा है, तो इतनी बार का ही लोग देखते हैं इंटरव्यू में। और ये सब इंटरव्यू लेने वाले को सिखाया जाता है कि भाई तुम ये देखो, कैंडिडेट में ये देखो, कैंडिडेट कैसा बैठा है, कैंडिडेट के पैर कैसे हैं, कैंडिडेट के हाथ कैसे हैं। तो ये सारे मैनरिज्म इंटरव्यू लेने वालों को भी सिखाए जाते हैं कि भाई तुम ये सारी चीजें देखो, क्योंकि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में कैंडिडेट को इंटरव्यू लेना है, देखना है, परखना है।
और फिर उसके बाद उसको सिलेक्ट करना है, और कल ऐसा ना हो कि सिलेक्ट करने के बाद हमने जिस तरह उसको काबिल समझ के लिया था वो काबिल नहीं है, वो बहुत गुस्से वाला है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, हर किसी से झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है, मारा मारी करता है, चोरी करता है। तो अगर हमारा कोई एम्प्लॉय ये सब गलत बातें करता है, तो जिसने इंटरव्यू लिया उसके लिए भी ये शर्म की बात है, और कंपनी के लिए भी ये शर्म की बात है। तो छोटी छोटी चीजें जो है ये बहुत मैटर करती है। अच्छा, बैठना कैसे है? सिट स्लाइटली एंगल्ड, सिट एट एन एंगल इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली, नंबर 1। और अगर कुर्सी है टेके वाली तो हम टेका लगा के ना बैठे, थोड़ा अटेंटिव पोज में बैठे, यानी सावधान और विश्राम, जो दो पोजीशन है उन दोनों के बीच की जो है हमारी लेवल हो, दोनों पैर जमीन पे टिके हुए हो और हम इंटरेस्ट के साथ बैठे हो। ऐसा नहीं कि भाई बैठे हैं तो इधर देख रहा है उधर देख रहा है, दांत साफ कर रहा है, खुजा रहा है, नाक साफ कर रहा है। नहीं, लोगों की अजीब अजीब आदतें होती है, खसलतें होती है, उनको पता नहीं चलता, लेकिन सामने वाला उसको नोटिस करता है। मैं एक होटल में खाना खाने जाता था, अब खाना खाने में बैठा हूं, अब उसके कुछ लोग जो है वो, एक आदमी जो वो नाक में उंगली डाल रहा है, कोई है जो वो दांत साफ कर रहा है, अब मैं उसको देख रहा हूं तो वो हाथ निकाल लेता है, फिर मैं उसको देखूं नहीं देखूं तो चालू हो जाता है उसका काम। तो ये सारी चीजें हम होटल में जब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इंटरव्यूअर कैसे इसको बर्दाश्त करेगा? और आखिरी बात है डूज में कि बी कॉन्फिडेंट। हम जो है वो भरोसे के साथ, इत्मीनान के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, to help convey poise and confidence, practice the power pose right before the interview। समझेंगे नहीं? ये हम अच्छे तरह से बैठे और टेंशन फ्री, कोई टेंशन लेके नहीं बैठे कि भाई इंटरव्यू दे रहा हूं मैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सारे टेंशन लेने की वजह से जो है हमारा इंटरव्यू पे असर पड़ सकता है, और हम जानते होंगे अच्छा इंटरव्यू में अच्छा फेयर भी कर सकते होंगे, लेकिन ये टेंशन की वजह से हम अपना कॉन्फिडेंस लूज करते और फिर इंटरव्यू में हम फेल हो जाते। डू नॉट्स में, do not smile nervously, smiling too much can make you seem nervous, so smile upon intro and exit only। पूरे इंटरव्यू में वो सवाल पूछ रहे हैं तो इस तरह से बार बार स्माइल नहीं करना है, हैंडशेक के वक्त स्माइल करना है, या निकलते वक्त हैंडशेक कर रहे हैं तो स्माइल करके निकलना है, ठीक है? देन पर्स योर लिप्स, इट मेक्स यू लुक लाइक यू आर होल्डिंग समथिंग बैक। अपने अपने को ऐसा लगना नहीं मांगता है कि हम कुछ रोक रहे हैं, सवालों का जवाब जो है वो अच्छे से देना है। कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड, क्लेम योर स्पेस, कीप आर्म्स अनक्रॉस्ड बट डोंट बी टू टेरिटोरियल। एकदम मैंने साइलेंट बैठे हैं या एकदम फैल के बैठे हैं, बैठने के जो मैनर्स हैं, जो तरीके हैं। एंड टच योर फेस एंड हेयर, ट्राई नॉट टू टच योर फेस ऑल टुगेदर, इट्स अ साइन ऑफ नर्वसनेस। है ना, बार बार हम हाथ लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो है ना, ये सारी चीजें जो है नहीं करना है। देन हाउ टू आंसर कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। अभी जो कॉमन इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं वो बोलेगा, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ, तो क्या करना है, यानी किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है? तो सबसे पहला है कि बी प्रोफेशनल, ओके, फोकस ऑन द स्टोरी टू टेल, बी कंसाइज, बी स्पेसिफिक एंड connect your story to the position। Now if you are going for suppose a marketing job, तो आप मार्केटिंग के ताल्लुक से एज ए प्रोफेशनल, आई एम अ मार्केटिंग प्रोफेशनल working for last 12 years in so and so company, and I've done marketing in the areas and territories of Mumbai, Delhi, Kolkata, metro cities। जो भी एकदम short and sweet में। अभी in spite of having 33 years of experience, I faced some interview recently and I was
on your own and come up with your own responses. What do you know about this organization? The first question, what do you know about, what do you know about this organization? Then why do you want this job? Give an example of a situation where you didn't meet your goals or objectives. Give an example of a situation where you face conflict or difficult problems. Where do you see yourself in 5 years? What would your current manager say are your strengths and weaknesses? Why should we give you this position? Give us an example of when you face with a big challenge. Do you like working in teams? What is the first thing you would change if you were to start work here? तो इस टाइप के ये 10 सवालात हैं. अब इसमें से जो है अभी हमको जैसे अभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करना, जैसे हमने कहा था शुरुआत में कि भाई हमको थोड़ा पता कर लेना चाहिए जिस कंपनी में हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, भाई क्या करती है कंपनी, बिजनेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कितने साल पुरानी है और क्या क्या कंपनी के एक्कोलेट्स हैं, या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्होंने क्या किया है, सीएसआर में क्या किया है. फिर व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, अगर ये सवाल किए तो क्या जवाब दें हम. तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और हम जो जवाब देंगे इंटरव्यूअर को वो जवाब अच्छा लगे या नहीं लगे ये भी उसके ऊपर डिपेंड है. अगर हम कह सकते हैं कि सर सी आई एम suitably qualified and I'm having the requisite experience desired for this job, so I feel that I must get the opportunity to work in your esteemed organization, something like this. Okay, where do you see yourself in 5 years? तो अगर ये सवाल कोई करे 5 साल में, तो आप बोल सकते हैं कि मैं तो सीईओ बनना चाहता हूं. यानी कुछ फिजिबल चीज बोले, जो पॉसिबल चीज है. अभी कुछ कंपनियां रहती हैं कि जिनमें आप एज ए ट्रेनी ज्वाइन होते हो, एज ए अप्रेंटिस ज्वाइन होते हो, और बढ़ते बढ़ते हर 3 साल में 5 साल में एक प्रमोशन होता है और रिटायर होने के बाद एक प्रमोशन होता है. ये उनके रिजीम होती है. तो वो भी आप पता कर लें कि भाई कंपनी में क्या है. अभी 5 साल बाद कम से कम एक तो प्रमोशन होना, तो आप अपने नेक्स्ट ग्रेड के बारे में बता सकते हैं कि भाई आई फील दैट इफ आई एम गिवन द गुड अपॉर्चुनिटीज I can excel and reach the next level in the management. ठीक है. तो ये सवालों के जवाब काफी ट्रिकी होते हैं. अभी जैसे डू यू लाइक टू वर्किंग इन टीम्स, अब इसका जवाब आपने क्या दिया? यस, डेफिनेटली इसका जवाब यस ही होना चाहिए. आप समझे कि नहीं? बट अगर आपका जॉब रोल टीम का नहीं है, आप जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं अगर वो सिंगल पर्सन या सिंगल पर्सन टीम है, आप अकेले को काम करना है और आप अपने टीम के जो है इतने फायदे गिना दिए, तो वो क्या सोचेगा कि भैया अकेला काम नहीं कर पाएगा, इसको टीम की जरूरत पड़ेगी. तो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं जो पोजीशन से रिलेटेड होते हैं, उस पर भी हमको ध्यान देना, समझना है. अल्लाह ताला ने 2 कान दिए हैं ये अच्छे तरीके से सुनने के लिए, और फिर उसके बाद समझ के दिमाग से बात करके फिर उसको जो है हमको बताना है. Now it's time for preparing your stars. ठीक है. So understand what skills the company considers critical to success there, and write out stars for each skill on your resume. तो स्टार मेथड क्या है? जैसे सिचुएशन है, व्हाट वाज द सिचुएशन यू योर प्रीवियस एम्प्लॉयर फेस्ड. टास्क, क्या काम, व्हाट टास्क वेर इन्वॉल्वड इन दैट सिचुएशन. फिर उस वक्त क्या एक्शन लिए, व्हाट एक्शन डिड यू टेक एंड व्हाट वाज द रिजल्ट. तो ये एक सिचुएशन के ऊपर जो है पुरानी कंपनी में एक समझो कि भाई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया उन्होंने, तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना था, तो टास्क ये था कि भाई आपको नया प्रोडक्ट मार्केट में जाके उसको इंट्रोड्यूस करना और उसकी खपत बढ़ाना था.
आपने क्या क्या एक्शन लिए और उसके क्या क्या रिजल्ट निकले, तो मार्केट में जो है वो प्रोडक्ट चल गया आपके एरिया में, आप समझे कि नहीं। तो इस तरह से अपनी रिज्यूमे को बिल्डअप करना। नाउ टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस आस्क्ड, और भी इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ शेयर किए हमने, जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। अपने बारे में जो है कोई 3 घंटे की पिक्चर नहीं बतानी है, मुख्तसरन बताना है, समझे कि नहीं। व्हाट डू यू नो अबाउट अवर कंपनी, तो उस कंपनी के बारे में आपको रिसर्च करके जाना है। अभी जैसे बाटा शू कंपनी का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो बाटा शू कंपनी कितनी पुरानी है और इंडिया में कितने सालों से है और उसके कितने शोरूम हैं और कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। या आप फॉर एग्जांपल सबवे में जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, सबवे कहाँ का है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, फिर इंडिया में कब आया सबवे, इंडिया में कितने उसके आउटलेट्स हैं, तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। And what do you know about the position you are applying for? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन, जो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है वो हमको पता होना चाहिए कि भाई मैं इस पोजीशन के लिए जा रहा हूँ, मुझे ये एक्स वाई जेड ये सारी चीजें करनी है। ओके, देन व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि भाई आप में क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं। अब आदमी अपनी खामियां तो बता नहीं सकता, खूबियां ही बताने की, तो खूबियों में जो है मैनेजमेंट रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि भाई आई हैव राइट एटीट्यूड, आई एम अ टीम मेंबर, इस टाइप की जो चीजें हैं, मैनेजमेंट के 2-4 अच्छे शब्द याद कर लो और उनको जो है ये करो, ठीक है। देन व्हाई शुड वी हायर यू, ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि हम आपको क्यों लें। तो वही है कि भाई देखिए सर, ये आई थिंक आई हैव टू रश, ओके नाउ क्वेश्चंस यू शुड आस्क। अब ये इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछ लिया, आपको क्या पूछना है कि व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट वर्किंग फॉर दिस कंपनी, टेल मी अबाउट द कल्चर। Then how will I be evaluated during my first 3 months? What is the position vacant? Why do you think job applicants choose to work here rather than your competitors? Then what are the next steps? Then answering tips, maintain eye-to-eye contact, avoid saying fillers such as basically actually ठीक है, smile, बीच बीच में थोड़ा स्माइल करो, बी कोर्टियस एंड प्रोफेशनल, टेल स्टोरीज, ऑलवेज गिव एग्जांपल्स फ्रॉम योर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, ओके। Never say this in an interview. Your primary reason for job hunting is that your present boss manager is racist, sexist, unfair, very poor. अपने बॉस की, करंट कंपनी के बॉस की बुराई नहीं करनी है, ओके। और the job is just one of the several, और ये भी नहीं बोलना है कि हाँ अभी तो आपका इंटरव्यू, कल उधर दूसरा भी इंटरव्यू लाइन अप, फिर परसों तीसरा भी इंटरव्यू लाइन अप है, बहुत सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं। ये कभी नहीं बताना है कि भाई मैं बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहा हूँ, ठीक है। देन यू हैव एन इनसाइड कॉन्टैक्ट, रिलेटिव हैज गिवन यू लॉट्स ऑफ, हाँ कि भाई आपकी कंपनी में मेरे फुप्पा काम करते, मेरे खालू काम करते और मेरी आंटी काम करती है, उन्होंने सब बताया आपका अच्छा है, वैसा है, ये है, वो है, ये भी कभी नहीं बात करना, ओके। Then the biggest mistakes made at interview, having no questions, then textbook answers. 11% of interviewers said getting lost in the crowd was the biggest mistake. Okay, then being arrogant. Okay, थोड़ा मैंने, अभी कोई एरोगेंट बच्चा है तो 10 मिनट बात करो उससे तो पता चल जाता है, और कभी कभी तो कैसा है कि इंटरव्यूअर रहते, वो लोग एक्ट रहती है उनके पास, फिर टर्निंग अप लेट and being unprepared. Now 39% of interviewers said arriving to the interview room unprepared was a common error and doing no research. ये भी जो है बहुत बड़ा बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम जो है फिर इंटरव्यू के लिए
Start smart. Ask the following question. Dress code for interview, time, location, name of the interviewer. For overseas interview, Indian Standard Time or Foreign Standard Time. Research company details. Then scout the interview location. जैसा मैंने पहले बताया कि भाई इंटरव्यू जहां है लोकेशन वहां 15 से 20 मिनट पहले जो है आप पहुंचो वहां पे. ज्यादा जल्दी मत पहुंचो, घंटा 2 घंटा पहले मत पहुंचो और लेट भी मत पहुंचो. Then use common sense during the interview. Turn off your phone. Always take notes during the interview. Look confident and calm. Use the 50-50 rule. सुनना भी है, जवाब भी देना है. सुनना भी है, जवाब भी देना है. अब वो पूछे जा रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए. Then body language. Be aware of your body language at all times. Use a firm but reasonable handshake. Sit erect and lean slightly forward to show interest. Share your attention, engage when answering questions. Then end on a good note. Always thank the interviewer for the time. If you really want the job, tell the interviewer in no uncertain term. Collect cards of everyone. And interview खत्म हो गया. So thank you very much for your time. एक जुमला बोल देना, हंस के मुस्कुरा के, हाथ मिला लेना. Thank you sir. Goodbye. फिर उसके बाद फॉलो अप करना. भाई इंटरव्यू हो गया, अब क्या हुआ? थैंक यू मेल भेजो, हैंड रिटन नोट्स भेजो. इफ सिलेक्टेड रिक्वेस्ट फॉर फीडबैक. इफ नॉट सिलेक्टेड, अगर आपको सिलेक्ट नहीं किए तो थोड़ा फीडबैक भी पूछ लो इंटरव्यूअर से या एचआर डिपार्टमेंट से. एरियाज वेयर यू डिड रॉन्ग, यानी कहाँ आपने जो है वो ठीक नहीं किया, परफॉर्म किया इंटरव्यू में. ठीक है. तो विद दिस स्लाइड, दिस वाज द लास्ट स्लाइड एंड हम अब आ गए हैं इवैल्यूएशन क्वेश्चन पे. For today's presentation, A is strongly agree, B is agree, C disagree, D strongly disagree and E don't know. ये तीन चीजें हैं कि भाई this session has increased my knowledge on what to expect and how to prepare for an interview, and the presenter was well prepared. This session should be repeated in future semesters. तो ये तीन सवाल हैं, इसके बारे में जो है आप लोग जो आपके कमेंट बॉक्स हैं उसमें आप लोग कमेंट डाल सकते हैं, A, B, C, D, E. ठीक है. और आई होप कि आप लोगों को जो है ये सेशन कुछ तो फायदा हुआ होगा. एंड माफी चाहूंगा अगर मैंने आपके लिए जो है वो जो आप तमन्ना लेके आए थे, जो जैसा सोचे थे वैसा सेशन नहीं हुआ हो, तो मैं माफी चाहता हूं. नाउ एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, AMP, क्या कर रहे हैं हम AMP के जरिए? वी आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी. वी हैव स्पेंट बोथ टाइम एंड एफर्ट्स टू कम हियर टू गाइड फॉर योर फ्यूचर. So when you have time, spend few hours and serve the community and society at large. Be a part of this revolution and help take people to new horizon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I think there are some questions and answers. Tirmizi, right? Yes, sir. There are some questions, so I'll read them one by one. So you kindly answer them, sir. Okay. So the first question is from Muhammad Zaid Masood. Why should you leave last job? What will be the answer for why should you leave last job? ये Muhammad Zaid Masood. Now it all depends कि आपका जॉब क्या है. नंबर 1, ओके, आपका जॉब क्या है और आपको जॉब क्यों छोड़ना है. तो अभी फॉर एग्जांपल हम केस टू केस बेसिस पे लेते हैं. अभी फॉर एग्जांपल आप एक टीचर हैं, और आपको एक स्कूल में जॉब लग गया है. अब ये गवर्नमेंट का जॉब है, टीचिंग का जॉब है. तो नॉर्मली टीचिंग का जॉब कोई बंदा छोड़ता नहीं है. एक स्कूल से दूसरी स्कूल से दूसरी से तीसरी स्कूल, ये उनके जैसे ट्रांसफर होते रहते, प्रमोशंस होते रहते, चलता रहता है. ये तो एक टीचर का जॉब हो गया.
दूसरा, अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने कंपनी में 3 साल काम कर लिए। अब 3 साल में जो फील्ड में था वो उसकी महारत उसको हासिल हो गई। अब जो है रूटीन जॉब हो गया है। अब वो बंदा आगे कुछ और सीखना चाहता है। अब उस कंपनी में अगर उसको स्कोप नहीं है, समझो जॉब रोटेशन उस कंपनी में नहीं होता कभी, तो अगर वो सोच रहा है जॉब चेंज करने का, तो बुरी बात नहीं है, आदमी जॉब चेंज कर सकता है। बल्कि हम इंजीनियर्स, मैं तो पेशे से इंजीनियर हूं, तो हम इंजीनियर्स में तो ऐसा है कि एज ए रूल पहले 10 साल में कम से कम 2 से 3 जॉब चेंज करो, ताकि आपको दूसरी कंपनियों के बारे में पता चल सके। 3-4 साल आदमी एक पोजीशन में रहता, काम करता, तो काफी कुछ उसको पता चल जाता है। ठीक है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, sir. We got your question, and there's one more question from Mohammed Zaid Masood. If interviewer did not shake hand, क्या? हाँ, ये सिचुएशन भी आती है कि बहुत सारे इंटरव्यूअर जो हैं वो नॉर्मली कोल्ड शोल्डर्ड, ठंडे हाथों जो है वो बैठे रहते हैं। ऐसे कैंडिडेट आएगा, अब वो, आपको तो ये पढ़ाया गया कि भैया हाथ मिलाना है। अब जाने के बाद क्वेश्चन रॉन्ग आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बंदा हाथ ही नहीं मिला रहा है, तो क्या करे? आप समझेंगे नहीं। तो एज ए अभी कोविड के टाइम में वैसे भी लोग हाथ मिलाने से हिचकिचाते हैं। हाँ, कोविड के टाइम में लोग आजकल ऐसा करते हैं। फिर कुछ लोग जो है कोनी से कोनी मिलाते हैं। तो अगर कोविड नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन है, तो एज ए इंटरव्यूवी आप अंदर जब जा रहे हैं तो गुड मॉर्निंग सर, आदाब सर, हाथ बढ़ाना चाहिए, हमको हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। अब उसके बाद वो नहीं मिलाता है, दैट इज अप टू हिम, बट हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम हाथ मिलाएं। ठीक है। दिस विल शो दैट वी हैव सम इनिशिएटिव, और हमारे अंदर ड्राइव है कि भाई हाथ मिलाना है मुझको, तो हाथ बढ़ा रहा हूं मैं आगे। और हाथ मिलाना जो, इट इज अ गुड साइन, इट इज अ साइन ऑफ अ जेंटल पर्सन। yes, sir. We got your answer, sir. And there's a question from one attendee that is it necessary to trim or shave your beard? या अभी देखिए, ये सवाल है दाढ़ी वाले से पूछ रहे हैं आप, समझे कि नहीं? ये दाढ़ी जो है, विद दिस बियर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, I studied my 11th, my 12th, and my entire degree, and I worked 33 years, alhamdulillah, with 2 multinationals in India and a lot of companies abroad, and believe me, I have not found any problem. लोग जो है वो आपकी दाढ़ी और आपकी मूछें और आपके बालों को नहीं देखते, वो आपके काम को देखते हैं। एंड उनका कंसर्न जो है सिर्फ काम होता है। ये हमारे दिमागों में भरा हुआ है कि भाई मैं क्या करूं। बट हाँ, अगर आप दाढ़ी नहीं रखते हैं तो शेव करके जाना ठीक है। अगर दाढ़ी नहीं रखते हैं और दाढ़ी है, तो फिर इंटरव्यू के लिए दाढ़ी निकालना जो है, ये आप सोचिए खुद। यानी दाढ़ी जो है, अगर आपकी सुन्नत दाढ़ी है, आपने दीनी हिसाब से रखी है, तो फिर उससे छेड़छाड़ जो है वो ठीक नहीं है। I hope I answered your question. Yes, sir. And there's a question from Mandal to Muslim Durga. Does all these rules helps in government since interview to like UPSC? Yeah, you see now, actually, when we were in college, when we were students, there were a good magazines, like Competition and Success Review, in which group discussion, then a lot of topics were covered. Now, if you are asking that whatever rules we discuss in this interview skills and techniques, yes, definitely they apply to
everywhere, even UPSC, MPSC, you go anywhere, normally these will be the guiding principles for any candidate to appear for interview. Yes, please, next question. Yes, yes. So, and the another question is from Osama Mullah. What can be bad reasons if this question is asked that why you want to leave your earlier company? Yeah, what can be a bad reason? Yeah, even it, you see, you can, there is not a mathematical answer for this question that what will be bad reason, okay, to give answer to the interviewer why you're leaving your current company and appearing for the interview in the next company. There cannot be 1 + 1 = 2 answer. But you should not say that I'm leaving the company because my boss is not good. This will be a bad answer. You should not say that my salary is less. This will be a bad answer. You should not say that I have to work too much there. My boss is not supporting me. This will be a bad answer. But if you say that, sir, I have worked in that company for almost 4 years, and I think that I must switch over for a new company where I can learn some new skills and techniques. This could be a good answer. Okay, thank you. Very right. Yes, sir. And it's a question from Yasin Pathan. How to negotiate with salary? How to negotiate with salary? Yeah, normally, you see, salary negotiation is very difficult for the candidate nowadays, because there are so many candidates available in the market. But normally, as a thumb rule, if your salary is X, you can ask for X plus. If they are offering you X plus 10% or 5%, you can ask for 15%, 20% and try. If they say yes, good. If they say no, then problem. So you normally, the salary rise nowadays is between 5 to 20% maximum. When we were young, that time, you know, salary wise used to be, when we changed the job, maybe double, maybe 1.5 times, 1.7 times. But now maximum 5 to 15%, 20%. So negotiation is really difficult from the candidate side. You cannot negotiate. You just cannot negotiate. If you continue to bargain and negotiate, you may lose job. So my advice to you is don't negotiate. Whatever they offer, if it is in the market range of 5 to 20%, accept it. Thank you. I think there are two questions: how to negotiate with salary. Yes, sir. So he got the answer. It's an anonymous attendee. You have answered the same question, right? So there's a question from Mohammed Hanif. I'm Hanif, completed industrial production engineering in 2020. Now I'm learning piping designing engineering, SP3D software in Hyderabad. What is the scope? Please answer. Yeah, Mr. Hanif, industrial production engineering with piping designing engineering software. It's really good. You see, this software in the piping is having lot of scope. You see, each plant, each factory of chemical, pharmaceutical, oil and gas, everywhere it is piping involved. So piping software
exposure and course is highly in demand. Okay, please continue, and you will not regret. Okay, sir. And sir, it's a question from Sufyan Shakir Hussain Patel. Sir, if I don't know answer of interview question, then what I do and how I can manage situation? Very, very good question by Mr. Sufyan Patel. You see, many a times when interviewer asks a question and we don't know, okay, we don't know ABCD of it. So it's better without wasting your and his time. You say, sir, I'm sorry, I don't know this answer. Okay, and you can add further, sir, I'm sorry, I don't know this answer, and please, sir, I'll be obliged if you can briefly explain me, sir. So one thing is you don't know the answer, so you are giving a very positive hope that आपको सवाल का जवाब नहीं मालूम है, बट आपने इनिशिएटिव लेके उनसे पूछा कि सर आप बताइए, आप समझे कि नहीं? तो बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हमको जवाब मालूम नहीं रहता, लेकिन जवाब मालूम नहीं है और हवा में जो है फेंकने से अच्छा है कि सीधा ना बोल देना, बिकॉज अगर आप गलत बोलोगे इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि ये गलत बोल रहा है. अच्छा, आप गलत बोलोगे और कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे तो उसको और गुस्सा आएगा कि देखो साला एक तो झूठ भी बोल रहा है और कितने कॉन्फिडेंस से फेंक रहा है. आप समझे कि नहीं? तो सबसे बेहतर एटीट्यूड और अप्रोच ये रहेगा कि सर मुझे नहीं मालूम इसका जवाब, सर प्लीज आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए ना. ठीक है? यस प्लीज. And the question ends here, and inshallah, so here we'll end the session. And before that, thank you very much for your precious time that you took out for this wonderful session. And inshallah, we look forward to such great and informative sessions ahead. Inshallah. Till then, sir, Allah Hafiz.